इसका हम यूनिट भी यहाँ पे देखेंगे। So in this lecture, we are going to discuss chemical equilibrium. This will be basically lecture third of chemical equilibrium. In this lecture, we will discuss Kp, Kc and relation between Kp and Kc. हम इस लेक्चर में रिलेशन बिटवीन Kp और Kc निकालने जा रहे हैं। So let us start the topic over here. मैं फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर करूंगा। जिसने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो एक बार उनको फिर से देखेगा। मैं यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर करूंगा। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन और हियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास केमिकल रिएक्शन यहाँ पे है N2 plus H2 gives 2 times ammonia. So this is a chemical reaction. ये मेरे पास कोई chemical reaction है, this is a balanced chemical equation. Now this is in gaseous phase, this is in gaseous phase, and this is in gaseous phase. This is called a homogeneous equilibrium. Now when all the reactants and products are in the same phase, that's gaseous, gaseous, gaseous. They may be in liquid, liquid, liquid. They may be in solid, solid, solid. Then the equilibrium is called, a homogeneous equilibrium. And this is an example of homogeneous equilibrium. अगर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन की आप Kc लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, then equilibrium constant for this reaction will be equal to product of concentration of product. जो आपके पास यहाँ पे products है उनकी concentration, equilibrium will be equal to, equilibrium constant will be equal to product of concentration of products. That's active mass of products, concentration को हम active mass कहते हैं. That's concentration of ammonia raised to power its stoichiometry, that is 2, divided by product of concentration of reactants. तो reactants में हमारे पास N2 है, N2 की concentration raised to power stoichiometry, that's 1. तो 1 का लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की concentration raised to power 3. This is how I can write equilibrium constant Kc for this reaction. लेकिन मैं इसी रिएक्शन को एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, that is Kc. So that is Kp. When I write equilibrium constant in terms of Kp, means I have to write in terms of partial pressures. तो gaseous के केस में हम डील करते हैं with partial pressures. तो in that case हम concentration को replace करेंगे with partial pressure. अच्छा, आपको कहाँ से आइडिया आएगा कि concentration partial pressure पे डिपेंड करती है? तो यहाँ से आपको पता है concentration किसके बराबर होता है? Concentration is equal to number of moles per unit volume. तो अगर आपके पास गैस है तो गैसेस के केस में आप PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन यूज करोगे। तो यहाँ से आप प्रेशर निकालोगे P इज इक्वल टू N बाई V इंटू RT। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट्स N अपॉन V. Therefore, you can replace this activity or this concentration with partial pressure. So you can write over here partial pressure of ammonia raised to power its stoichiometry, that is 2, divided by partial pressure of nitrogen raised to power its stoichiometry, that's 1, into partial pressure of hydrogen raised to power its stoichiometry, that is 3. Therefore, I have two ways by which I can write Kp and Kc of a reaction. There are two ways by which we can write Kp and Kc of a reaction. This is way 1 and this is way other. If your all reactants and products are in gaseous phase, we can write them also in terms of Kp. या अगर कोई भी reactant या product in terms of gaseous phase होगा तो आप रिएक्शन को बेसिकली बोथ Kc और Kp की फॉर्म में लिख सकते हो। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। Now one more important thing, I'll take one more example. मैं एक और एग्जांपल लूंगा।
बेसिकली आई विल टेक डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेज to give calcium oxide plus reduce carbon dioxide. So in this case, this is in solid phase. Calcium oxide is in solid phase. Carbon dioxide is in gas phase. So this type of equilibria is called heterogeneous equilibria. This is called heterogeneous equilibria. And this one is called a homogeneous equilibrium. तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आपको सारे कंसंट्रेशन देनी है। इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगा, Kc will be equal to concentration of products, that is concentration of CaO or active mass of products, concentration of CaO, concentration of carbon dioxide divided by concentration of reactant। तो reactant के concentration कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे इसकी concentration raised to power its stoichiometry, यहाँ पे stoichiometry 1 है। तो नाउ सी, ये हमारे पास सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। आपको रिमेंबर याद रखना है एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन टू बी इक्वल टू यूनिटी। इट्स ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ CaO, दैट इज सॉलिड, दैट्स एक्टिव मास ऑफ CaO, इट इज टेकन टू बी यूनिटी। Concentration of calcium carbonate, it is taken to be unity. Therefore, our Kc will be equal to concentration of carbon dioxide. So this is how we can write Kc and Kp of the reaction. अगर आपको इस reaction का Kp लिखना है, तो you can write Kp of this reaction partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide. This is Kp of this reaction. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये है कि जो आपका Kc है और जो आपका Kp है, जो आप यहाँ पे एक्टिव मास डिटरमाइन करते हो, अगर इनमें कोई सॉलिड या लिक्विड होगा तो एक्टिव मास विल ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मुझे बता, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ टेल मी, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अस्मा वेरी गुड, महक, महरू वेरी गुड, ओएस वेरी नाइस, तौसीफ वेरी नाइस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूंगा। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। दे कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज इन सॉलिड फेज, दिस इज इन गैसियस फेज एंड दिस इज इन सॉलिड फेज। मैं बताऊंगा इस रिएक्शन का Kc क्या होगा, इस रिएक्शन का Kc क्या होगा। तो यू विल राइट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यहाँ पे 1 है बिकॉज इट इज सॉलिड। हम जल्दी में आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे। डिवाइड बाय, यू विल राइट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। यू विल राइट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो यहाँ पे है उनका प्रोडक्ट है। तो सी, यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर लिखूंगा। तो you will write concentration of product, that's concentration of calcium carbonate, this is solid, divided by product of concentration of reactant, that's carbon dioxide into calcium oxide. Now see, calcium carbonate का जो active mass है that's 1, divided by carbon dioxide की concentration, उसका 1 नहीं होगा। carbon dioxide की concentration, calcium oxide की concentration 1 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे Kc will be equal to for this reaction 1 upon concentration of active mass of carbon dioxide. Similarly, Kp for this reaction will be equal to 1 upon partial pressure of carbon dioxide. तो Kp will be equal to 1 upon partial pressure of carbon dioxide. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, बट ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। व्हाट इज Kc, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स Kc फॉर द रिएक्शन, ये वाला भी आया है। तो यहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kp और Kc की रिलेशन हम यहाँ पे निकालेंगे, या हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे।
रिलेशन बिटवीन KP एंड KC पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो रिलेशन KP इज इक्वल टू, यहाँ पे आप याद रखो रिलेशन, हाईलाइट करके इसको नोट करना। KP इज इक्वल टू KC into RT raised to power delta NG. KP is equal to KC into RT raised to power delta NG. Now what is delta NG? It's number of moles of products minus number of moles of reactants. Basically stoichiometry देखनी है आपको यहाँ। Number of moles of products minus number of moles of reactants. ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। So we'll solve certain questions based on this concept. Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. तो यहाँ पे इस बेस पे हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। We'll solve questions based on this concept. तो इस कंसेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है, N2 plus 3 times H2 gives 2 times ammonia. तो इस रिएक्शन का आपको रिलेशन ढूंढना है बिटवीन Kp एंड Kc। तो यहाँ पे हम डेल्टा Ng पहले निकालेंगे। दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स के यहाँ पे कितने मोल्स हैं? दीज आर द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 1 है। 1 को हम यूजुअली डिनोट नहीं कर रहे। So number of moles of products in this case is 2 minus number of moles of products 3 plus 1. 3 plus 1 is equal to 4. तो यहाँ पे -2 निकलता है। Now we can apply the concept over here. Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng, that is -2. तो -2 को आप कैसे लिखेंगे? We'll write Kp is equal to Kc anything raised to power 2, अगर इसको नीचे लाओगे it will be RT raised to power 2. तो ये यहाँ पे इसका आंसर निकल के आता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Have you got this thing? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफर्म आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे बता इस रिएक्शन का Kp और Kc में रिलेशन, H2 plus I2 gives twice Hi. All of them are in gaseous phase. इस रिएक्शन का Kp और Kc में रिलेशन बताओ। You write Kp is equal to Kc into RT raised to power delta N. तो यहाँ पे पहले डेल्टा N निकालो, that will be equal to Np minus Nr. तो व्हाट इज Np ओवर हियर? Np प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट के आप यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट के आपको यहाँ पे कितने मोल्स मिलेंगे? 2 मोल। तो रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 plus 1 2. So del Ng will be equal to 0. That means Kp will be equal to, क्या किसी ने आंसर दिया हो? यहाँ पे आंसर आए हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। Kp is equal to Kc. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो Kp will be equal to Kc into RT raised to power 0. Anything raised to power 0 is equal to 1. Therefore, Kp is equal to Kc into 1. This is 1. Therefore, Kp will be equal to Kc. For this reaction, Kp will be equal to Kc. This question has been asked in competitive exam. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? Can you determine relation between Kp and Kc for any reaction? क्या किसी भी रिएक्शन की के लिए आप Kp और Kc की रिलेशन निकाल सकोगे? Can you determine relation between Kp and Kc for any reaction? Can you determine relation between Kp and Kc for any reaction? Very good, very good, very nice, very nice.
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई एक और एग्जांपल लेंगे, आपको उस एग्जांपल में केपी और केसी में रिलेशन ढूंढना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल एंड वी विल डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इन दैट एग्जांपल। तो जनरल इक्वेशन में एक लिखूंगा यहाँ पे, आई विल टेक ए जनरल इक्वेशन। मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स C। तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो यहाँ पे डेल्टा एन पहले निकालो। दैट्स वन, प्रोडक्ट में वन है माइनस रिएक्टेंट में टू प्लस वन थ्री है, इसको मैं 2C लिखूंगा। तो प्रोडक्ट में टू है, आपके रिएक्टेंट में टू प्लस वन थ्री है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन। देयरफॉर योर केपी विल बी इक्वल टू Kc into RT raised to power minus 1. Kp will be equal to Kc divided by RT. So this is the answer of the question. This is the answer of the question. Very good. Very nice. Very nice guys. Now उसके बाद हम इस, मुझे लगता है अब इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। आज आप प्रैक्टिस करना थोड़े से क्वेश्चन की बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। Now one more type of the question that can be asked from this concept। तो concept, इस concept पे और कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट अस डिस्कस दैट। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट पे, और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर इस रिएक्शन को कंसिडर करूंगा, किसी भी रिएक्शन को कंसिडर करूंगा। लेट मी अगेन कंसिडर दिस रिएक्शन। एक बार फिर मैं इस रिएक्शन को कंसिडर करूंगा। आई विल कंसिडर दिस रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया। तो लेट इट इज गिवन, यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ, इट इज गिवन दैट it is given that active mass of NH3 is equal to, for example, it is 4.5, let it is be 1.6 into 10 to the power minus 8, and active mass of hydrogen is equal to, at the active mass of hydrogen is 2 into 10 to the power minus 4. Active mass of nitrogen is 1 into 10 to the power minus 4. तो आप यहाँ से Kc निकालो। कैन यू डिटरमाइन Kc फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप Kc निकाल सकोगे। उसके लिए आपको Kc लिखना है। Kc will be equal to product concentration, that's ammonia concentration raised to the power 2, divided by concentration of reactant, that's N2 concentration, and concentration of hydrogen or active mass of hydrogen raised to the power 3. तो यहाँ पे अमोनिया का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। अमोनिया का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 8 का स्क्वायर, divided by concentration of nitrogen, that's 1 into 10 to the power minus 4, into concentration of hydrogen, that's 2 into 10 to the power minus 4 raised to the power 3. That is 2 into 10 to the power minus 4 raised to the power 3. तो यहाँ पे आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस। लेट अस सॉल्व दिस थिंग ओवर हियर। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Now see, this will come out to be, this will be equal to 1.6 into 1.6, मतलब ये हमें दो बार लिखना है। 1.6 into 10 to the power minus 8 into 1.6 into 10 to the power minus 8, divided by 1.4 into 10 to the power minus 4, 1 into 10 to the power minus 4, 1 into 10 to the power minus 4 into 2 into 10 to the power minus 4 का होल क्यूब। मीन्स इसको यहीं से सॉल्व करो। 2 into 3, that means 8, 2 2s are 4, 2s are 8, that's 8 into 10 to the power minus 10। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकोगे। यू कैन सॉल्व इट फर्दर। 1.6 into 1.6, it becomes equal to 2.56. 16 16s are 256, that is 2.56 into 10 to the power minus 8 minus 8, that's minus 16, divided by 8 1s are 8 into 10 to the power
12 4 आर 16, -16। तो -16 से -16 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो। 8 3 आर 24, 8 2 आर 16। तो यहाँ पे आपका 0.32 आंसर निकलेगा, 0.32। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट? क्या इस कंसेप्ट के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट? मुझे बता, अगर आप की कंसंट्रेशन दी हुई होगी, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे? सो इस बेस पे आपके टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हो गए। उन क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ना नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, आज का लास्ट पार्ट, उसमें हम डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, इसको आप नोट डाउन करो। हम तब तक नया टॉपिक ढूंढ लीजिए, दैट्स यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। डिस्कस करेंगे हम यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे। हम डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। Now let us take the concept unit of KP और KC। तो इसका यूनिट निकालना है हमें। तो यू नो दैट KC इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज इक्वल टू, एक्चुअली इट्स इक्वल टू कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बिकॉज हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिएक्शन कंसिडर करूंगा, A प्लस बी गिव्स C प्लस D। तो इसमें अगर आपको Kc लिखना है, यू विल राइट Kc फॉर दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B। ना कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो इसका यूनिट मोल पर लीटर, इसका यूनिट मोल पर लीटर, और डिवाइड बाय इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। तो यहाँ से आप जनरल लिखो कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर डेल्टा एन। इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एन, बिकॉज हर वक्त आपकी कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी। इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एन। सो यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर डेल्टा एन। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास मोल डिवाइड बाय लीटर रेज़ टू पावर डेल्टा एन। तो अगर आपको यूनिट ऑफ केसी निकालना है, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन डेल्टा एन। तो यूनिट ऑफ केसी विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एन। डेल्टा एन आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे फॉर एग्जांपल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ केसी। अगर आपको केपी का यूनिट निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ केपी हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एटीएम। तो एटीएम आप यूज करोगे, एटीएम रेज़ टू पावर डेल्टा, एटीएम रेज़ टू पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे आप एटीएम का यूज करोगे बिकॉज यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज एटीएम। तो यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर इज यूनिट ऑफ प्रेशर दैट्स एटीएम। इफ इट इज गिवन इन एटीएम इट मे बी इन पास्कल एज वेल। तो आप मोर अप्रोप्रिएटली यहाँ पे लिख सकते हो यूनिट ऑफ प्रेशर raise it to power delta m, because you know that pressure has many units। आपके पास बार भी हो सकता है, आपके पास टोर भी हो सकता है, आपके पास 76 mm ऑफ मर्करी भी हो सकता है, आपके पास 76 cm ऑफ मर्करी भी हो सकता है, आपके पास पास्कल भी हो सकता है, तो आपके पास एटीएम भी हो सकता है। इन सारे को हमने पहले ही रिलेट किया है, हाउ वी कैन रिलेट। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केसी फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरल आ सकता है, यूनिट ऑफ केसी फॉर अ रिएक्शन इज constant or it depends upon reaction to reaction। यूनिट ऑफ केसी विल डिपेंड अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है H2
प्लस I2 gives twice HI. तो आपको बताना है what is the unit of Kc and Kp for this reaction. So unit of Kc will be equal to unit of concentration raised to the power delta M. Now delta N in this case is Np minus Nr. Np आपके पास 2 है, Nr आपके पास 1 plus 1 that is 2. So del Ng will be equal to del N will be equal to 0. So unit of Kc will be equal to concentration raised to the power 0. Anything raised to the power 0 is equal to 1. Therefore, Kc will be unitless. It will be unitless in case of this reaction when आपका delta N is equal to 0. तो Kc हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट यहाँ पे आ गया. Kc will be always unitless. तो केस नंबर फर्स्ट हमारे पास बन के आया. केस नंबर फर्स्ट हमारे पास जो बन के आया दैट इज केस नंबर फर्स्ट. तो केस नंबर फर्स्ट में इफ delta N is equal to 0 then Kc as well as Kp is unitless. It has no unitless, it is unitless. आप यहाँ पे Kp का भी निकालो, that's atmosphere raised to power 0 that is equal to 1, that is unitless. तो यहाँ पे कोई यूनिट आपके पास नहीं आएगा, that is unitless. So number second, if del N is equal to 0 your Kp will be equal to Kc. ये बात हमने पहले ही डिस्कस. तो केस नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी भी रिएक्शन का, मेरे पास कोई रिएक्शन है A plus 2B gives C. तो यहाँ पे आप डेल्टा एन निकालो, दैट विल बी इक्वल टू 1 minus 2 plus 1 that is 3 that is -2. तो यहाँ पे आपका डेल एन -2 आ गया. तो यू कैन राइट ओवर हियर Kc का यूनिट दैट इज कंसंट्रेशन मोल पर लीटर raised to power -2. मोल पर लीटर raised to power -2. del n is -2. तो आप इसको लिख सकते हो मोल into -2 that's मोल -2. लीटर का -2 नीचे वालों इट मस्ट बी लीटर स्क्वायर. लीटर स्क्वायर. तो दिस इज द यूनिट. Kc का यूनिट ये आएगा अगर आपका डेल Ng डिफर होगा. तो वेन एवर योर डेल Ng डिफर, जब आपका डेल Ng डिफर हो जाएगा, आपका यूनिट ऑफ Kc इट विल ऑलवेज डिफर. देन यूनिट ऑफ Kc विल डिफर. यूनिट ऑफ Kc विल डिफर. तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे यूनिट ऑफ Kc एंड Kp differs in different reaction. Differs in different reactions depending upon delta n. And when delta n is equal to 0, it's always unitless. It's always unitless. तो बेसिकली इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं. क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? क्या अगर आपको यहाँ तक बात, मुझे बताइए यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ. जल्दी से मुझे बताइए यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी. वेरी नाइस बैक अस्मा फैसल, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा फॉर होमवर्क. हम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद हमें QC डिफाइन करना है. QC को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे. QC क्या होता है. तो पहले हम इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर. तो मेरे पास कोई रिएक्शन है, यहाँ पे आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट it gives calcium oxide plus carbon dioxide. तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन. मेरे पास कोई और रिएक्शन है PCl3 plus Cl2 gives PCl5. मेरे पास कोई और रिएक्शन है, इसका रिवर्स में लूंगा PCl5 dissociates to give
PCl3 प्लस Cl2। तो आपको एक रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc निकालने हैं, और नंबर सेकंड आपको यूनिट ऑफ Kp एंड Kc निकालना है, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्या हम यहाँ पे अब स्टॉप करने जा रहे हैं? ओके सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको क्वेश्चंस डालने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आई विल सेंड देम इन द ग्रुप। मैं ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो आप उनको सॉल्व करना। ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चंस डालूंगा, उनको आप सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दोज वेरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा इसको, लेट अस स्टॉप द टॉपिक ओवर हियर।